अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्यद्वरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। हरिः ओं तत्सत्। श्री गोविंद 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 अस्य श्री भगवतः महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयवरार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक प्रभवादि षष्ठिसंवत्सराणां मध्ये श्री क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ श्रावणमासे कृष्णपक्षे द्वादश्यां शुभतिथौ भृगुवासरयुक्तायां पुनर्वसु नक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकल विशेषण विशिष्टायां द्वादश्यां शुभतिथौ श्री भगवतः श्री वासुदेवस्य दिव्याज्ञया श्री वासुदेव प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य श्री भूमनीला पद्मावती नायिका समेत श्री श्रीनिवास स्वामी सन्निधौ अस्याः देवदेव्याः भगवत्याः श्री पद्मावती महालक्ष्म्याः प्रीत्यर्थं राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి కళ్యాణోత్సవానికి సమర్పించుకున్న ఉభయదాతలు మీ గోత్రం పేరు నక్షత్రం, మీ శ్రీమతి యొక్క పేరు నక్షత్రము మరియు మీ పిల్లల యొక్క పేరు నక్షత్రమును మనసులో స్మరించుకోవలసిందిగా. लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गदामेश्वरीं अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्यानुकूल सिद्ध्यर्थं श्री पद्मावती महालक्ष्म्याः परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं श्रीपांचरात्र भगवत्शास्त्रोक्त विधानेन कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन करिष्ये. श्री पद्मावती प्रीयतां प्रीयतां भगवती पद्मावती. मंगलवाद्यम्. लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गदामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां லோகைகதீபாங்குராம் என்று திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயாரை தரிசனம் செய்து கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ. அருணா சங்கல்ப மந்திரங்களை கேட்டோம். அதைத் தொடர்ந்து இப்பொழுது சேனா முதலியனும் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவாஜன கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். ஆணி மாதம் 12வது நாள்
ஆவணி மாதம் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமை புனர்வசு நட்சத்திரம் துவாதசி திதியுடன் கூடிய வெள்ளிக்கிழமை. பக்தர்களே, இந்த சிறப்பான நன்னாளிலே சிராவண மாதத்திலே வரும் கடைசி வெள்ளிக்கிழமை. ஆக இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த இந்த நன்னாளிலே தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் திருச்சானூர் கோவில் உள்ளே இருக்கும் மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய வக்ஷஸ்தல நாயகி மகாலட்சுமி அங்கே இங்கே பத்மாவதியாக கோலிவீற்றிருக்கிறாள். செல்வங்களை அள்ளி அள்ளி பக்தர்களுக்கு அருளும் மகாலட்சுமி ஒவ்வொரு மன்வந்திரத்திலும், அதாவது 71 மகாயுகங்கள் கொண்டது ஒரு பிரம்ம தினத்திலே 14 ஒரு பகுதியாக கொண்ட காலம், ஒவ்வொரு தோற்றத்தில் அவதரித்து அருள் புரிந்திருக்கிறாள். அவ்வாறு 7 மன்வந்தரங்களில் அவதரித்த அவர்கள் சப்த லக்ஷ்மியர்கள் என்று போற்றி வழங்கப்படுகின்றனர். அந்த 7 மன்வந்தர மகாலட்சுமிகளின் திருக்கோலங்களை இப்பொழுது நாம் செவிக்கலாம். சுயம்புவ மன்வந்தரம். பிருகுமுனிவர் சத்வகுணமூர்த்தி யார் என்று அறிய பகவானின் மார்பை எட்டி உதைத்தார். அதை கண்ட அந்த லக்ஷ்மி தேவியானவள் மனம் வருந்தி பூமிக்கு தவமியற்ற புறப்பட்டாளாம். பிறகு பிருகுமுனிவர் திருமகளிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு, என் மார்பிலே எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் எட்டி உதைத்து அருள்வாய், என்னை மன்னித்துவிடு தாயே என்று வேண்டினாராம். அவர் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க அவருக்கே மகளாக பார்கவி என்னும் திருநாமத்துடன் மகாலட்சுமி தோன்றி குழந்தையாக ஆனந்தமாக அவர் மார்பிலே எட்டி உதைத்து விளையாடினாளாம். தக்க பருவம் வந்ததும் பெருமாளை மணம் புரிந்தாள். ஸ்ரீஹரியை தன் குலமகளாக பெற்றதனால் அவர் வம்சம் ஸ்ரீவத்ச கோத்திரம் ஆயிற்றாம். திருமாலை மணந்த பிறகு பிருகுமுனிவர் எட்டி உதைத்த அந்த கால் சுவடு திருமாலின் மார்பிலே மச்சம் போல் பதிந்திருக்கிறது. தேவி அதை வாஞ்சையுடன் தடவ அன்று முதல் அந்த மச்சமானது ஸ்ரீவத்சம் என்று போற்றப்படுகிறது. இது பிருகுமுனிவருக்கு பிறந்தவள் பார்கவி என்று எந்த மன்வந்திரத்திலே என்றால் சுயம்புவ மன்வந்திரத்திலே. அடுத்ததாக ஸ்வரோஷித மன்வந்தரம். இந்த மன்வந்தரத்திலே மகாலட்சுமி அக்னியிலிருந்து ஆவிர்பவித்தாளாம். பிறக்கும் போதே ஞானி என்று பொருள்படும் ஜாத வேதஸ் என்ற பெயருடன் கொண்டாளாம். இந்த ஸ்ரீ சூக்தத்தின் தொடக்கமே, ஹே ஜாதவேதனே, பொன்னிறத்தவளே, பாவங்களை எரிப்பவளும் பொன்னாலான மாலையை அணிந்தவளுமான நிலவை ஒத்த குளிர்ச்சியை உடைய பொன்னியாகிய திருமகளை எனக்கு கருணை செய்ய எழுந்தருள்வாய் என்று வேண்டுகிறது. ஞான பிரகாசத்தோடு நிலவின் சீதளம் கலந்து சந்திரையாக இந்த மன்வந்திரத்திலே தேவியாக அவதரிக்கிறாள் லக்ஷ்மி தேவி. அப்படிப்பட்டவளுக்கு இதோ திருச்சானூரிலே பத்மாவதியாக எழுந்தருளியுள்ள அவளுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாஜனத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இந்த சிறப்பான வெள்ளிக்கிழமையிலே அந்த தாயாருடைய கருணா கடாட்சத்தை பெறலாம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அடுத்தது ஔத்தம மன்வந்தரம். இந்த மன்வந்தரத்திலே தேவி தெளிந்த நீரிலிருந்து ஆவிர்பவித்தாள். வைகுந்தத்தை சூழ்ந்த விரஜா என்னும் நல்ல நீர் பெருக்கியிலிருந்து தோன்றினாளாம். நனைந்தவள் என்றும் பொருள்படும் ஆர்த்ரா என்ற பெயரை ஸ்ரீ சூக்தத்திலே 2 மந்திரங்கள் குறிக்கின்றன. இவளுடைய ஆர்த்தா நட்சத்திரமே சிவபெருமானுக்குரிய ஆதிரை, அதாவது ஆருத்ரா என்றும் திருவாதிரை என்றும் நட்சத்திரமானது. இவள் செக்க சிவந்த திருமேனியுடன் உலக சக்கரவர்த்தினியாக கையிலே செங்கோல் ஏந்தியதை அருள்வதை யக்ரீணம் யஷ்மம் என்று ஸ்ரீ சூக்தம் கூறுகிறது. யக்ரீணம் யஷ்மம் என்று ஸ்ரீ சூக்தத்திலே குறிப்பிடுகிறது. இவளுக்கு சிக்லீதர் என்னும் பெயரிலே மன்மதன் மகனாக தோன்றினானாம். அதனால்தான் சிக்லீதரே, நீ வீட்டில் வசித்து திருமகளை எங்கள் குலதெய்வமாக வேண்டும் என்றும் எங்களுக்கு பால் நெய் போன்ற
பசையுள்ள பொருள்களை தாராளமாக அளிக்க வேண்டும் என்றும் ஸ்ரீ சூக்தத்திலே பிரார்த்தனை செய்யப்படுகிறது. அடுத்து தாமச மன்வந்திரம். இந்த மன்வந்திரத்திலே தேவியானவள் பூமாதேவியின் புதல்வியாக பூமியிலிருந்து அவதரித்தவள். மண்ணின் சிறப்பான குணம் அதன் மனம். எனவே திருமகளை மனத்தின் வாயிலாக அடையத்தக்கவள் என்றும் பொருள்படும்படி கந்தவாராம் என்று ஸ்ரீ சூக்தத்திலே போற்றப்படுகிறது. இந்த மன்வந்திரத்தில் அலைமகளே நிலைமகளானாள். அதாவது இந்த தேவியாராலும் வெற்றி பெற முடியாதவள், ஊக்கம் தருபவள், அனைத்திலும் நிறைந்தவள், அனைத்து உயிரையும் ஆளும் ஈஸ்வரி என்ற மறைகள் போற்றுகின்றன. அப்படி இவ்வளவு சிறப்பான அந்த மகாலட்சுமி தாயார் நமக்கு அருளி செய்து கொண்டிருக்கிறார். வேத மந்திரங்களை கேட்போம். அடுத்ததாக ரைவத மன்வந்திரம். देवस्यत्वासविदुःप्रासावेश्विनोः बाहुभ्यां पोष्णाहस्ताभ्याम् आददेदित्यैरास्नासे इळयेह्यदिदयेः सरस्वत्येः असावेह्यसावेह्यसावेः आदित्यैरास्नासेन्द्राण्या पुष्णेशाः पूषासे घर्माय देष्वा अश्वेभ्यां पिन्वस्व सरस्वत्यै पिन्वस्व राय पिन्वस्व स्वाहेन्द्रावत् 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 यस्ते स्तनशयो यो मायो भूर्यो रत्नधा पाशुवेद्यत्सुदत्राः येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वतितमिह भातवेगः कुर्वन्तरिक्षमन्वे मे गायत्रं छन्दोऽसि त्रैष्टो भञ्छन्दोऽसि यावा पृथिवीभ्यां त्वा परे गृह्णाम्यन्तरिक्षेणोपयच्छामि इन्द्राश्विनामधुनः सारघस्य घर्मं पादवसामो यजातवाट् स्वाहा सूर्यस्य रश्मये वृष्टिवनाय समुद्राय त्वावाताय स्वाहा शरीराय त्वावाताय स्वाहा अनाधृष्याय त्वावाताय स्वाहा प्रतिधृष्याय त्वावाताय स्वाहा अवस्य वे त्वावाताय स्वाहा शिमिदाय त्वावाताय स्वाहा इन्द्राय त्वावसो मते रुद्रवाते स्वाहेन्द्राय त्वादित्यवाते स्वाहा इन्द्राय त्वाभिमातिघ्ने स्वाहा सवित्रे त्वारभुमते विभुमते
वाजवते स्वाहा बृहस्पतये त्वा विश्वदेव्यावते स्वाहा यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्मपित्रे विश्वाशा दक्षिण तत्सर्वान् देवानायालिः स्वाहा घृतस्य घर्मस्य मधोऽप्यवदमश्विना विविधाः इमै यज्ञं द्विविधाः स्वाहाग्नये यज्ञियाय संयजभ्यः अश्वेना घर्मं पातज्ञहार्वा नमहर्दिवाभिः प्रोतिभिः तन्त्रायणे नमो द्यावा पृथिवेभ्यः अपादामश्विना घर्ममनोद्यावा पृथिवे अमग्नसाताम् इहैव रातयः सन्तो इषे पिन्वस्वोर्जे पिन्वस्व ब्रह्मणे पिन्वस्व क्षत्राय पिन्वस्वद्यावा पृथिवेभ्यां पिन्वस्व धर्मासु सुधर्मामेऽन्यस्मिन् ब्रह्मणे धारय ब्रह्मा धारय क्षत्रं धारय विषं धारय स्वाहा पोष्णे सरसे स्वाहा ग्रावभ्यः स्वाहा प्रतिरवेभ्यः स्वाहा पितृभ्यः ऊर्ध्वभार्गभ्यो घर्मपावभ्यः स्वाहा द्यावा पृथिवेभ्यः स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा रुद्राय रुद्रहोदये स्वाहा संज्योतिषा ज्योतिः अहः केतुना जुषताग् सुज्योतिर्ज्योतिष स्वाहा रात्रः केतुना जुषताग् सुज्योतिर्ज्योतिषा स्वाहा मधुहुतमिन्द्रतमे अग्ना अश्यामते देवघर्म नमस्ते अस्तमामाहिज्ञसेः अभीमं महिमा दिवं विप्रो बभूव सप्रथाः उत श्रवसा पृथिवेज्ञ सज्ञसेदस्वमहा आशिरोचस्वदे भवितामहा विद्धोममग्न अरुषं मेयध्य सृजप्रशस्तदर्शतम् याते घर्मदिव्या शुभ्या गायत्र्याज्ञ हविर्धाने साद आप्यायतां नित्यायतां तस्येते स्वाहा याते घर्मान्तरिक्षशुभ्या पृष्ठभ्याग्नेध्रे साद आप्यायतां नित्यायतां तस्येते स्वाहा याते घर्मपृथिव्याग्नशुभ्या जगत्याग्नसदस्या साद आप्यायतां नित्यायतां तस्येते स्वाहा क्षत्रस्य त्वामरस्पाय ब्रह्माणस्तम्भं पाहे वयमनुक्रामामसुविदाय नव्यसे ततस्रक्तर्नाभरहृतस्य सप्रथाः नो विश्वाय सप्रथाः नः सर्वाय सप्रथाः अपद्वेषो अपह्वरोऽन्यव्रतस्य षष्ठिमा धर्मैतस्य परेषं
तेन वर्षस्वजागव्याय महे जभयमागव्यासगे महे अचक्रधद्रसाहर महान् मित्रोनदागतः सग्गसौर्येण द्योतदोदधर्निधे स्वमेत्रियान आपहोषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तो ओस्मान् वेष्ट्यं च वयं विष्मः त्वद्वयं तमासस्परेष्वः पश्यन्त उत्तारम् देवं देवत्रासौर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् यथोऽस्य धिषेमहे समिदास्य तेजो मयेद्धेहे यावतेद्यावा पृथिवी तावच्च सप्तसिन्धवो वितस्थिरे तावं तमिन्द्रते ग्रहमूर्जा गृह्णाम्यक्षेतं मये गृह्णाम्यक्षेतम् मयेत्यदिन्द्रियं बृहन्मयदक्षो मयक्रतोः धर्मस्पृशोद्विराजति विराजाज्योतिरासः ब्रह्माणादेजसासः मया स्वरतमृतन्तस्यमसि मत्युत्तरमुत्तरागसमाम् केशः सम्रक्रत्य दक्षस्य सुषुम्नस्य सुषुम्नाग्निहुतः इन्द्रापेतस्य प्रजापतिभक्षितस्य मधो मत उपाहोतस्य भक्षयामि स्वाहा प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः पृथिव्यै स्वाहाग्नये स्वाहा अन्तरिक्षाय स्वाहा वायवे स्वाहा दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा दिग्भ्यः स्वाहा चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रेभ्यः स्वाहाभ्यः स्वाहा वरुणाय स्वाहा नाभ्ये स्वाहा भूताय स्वाहा वाचे स्वाहा प्राणाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा मनसः काममागोतिं वाचः सत्यमशिया पशूनाग्निरूपमन्नस्य रसो यशश्रेष्ठयतां मये स्वाहा प्रजापतिः सम्प्रियमाणः सम्भ्राक् वै प्रजापतिः सम्प्रियमाणः सन्नो धर्म प्रवृत्तस्तेज उद्यात आश्विनः पयस्य नीयमान पूषा विद्यन्तमान मारुतः पथम् मैत्रः सरसि सत्तायमान वायव्यो क्रियमान आग्नेयो हूयमान वाग्भुतः सविता प्रथमहन्नग्निर्द्वितीये वायुस्तृतीय आदित्यश्चतुर्थे चन्द्रमा पञ्चमरुतः षष्ठे मरुतः सप्तमे बृहस्पतिरष्टमे मित्रो नवमे वरुणो दशम इन्द्राय एकादश विश्वे देवा महादश
अग्निहृदय नाशनिहृदयाग्रेण पशुपतिकृत्स्नहृदयेन भवन्यग्ना सर्वं मदस्नाभ्यामेशानं मन्युना महादेवमन्तः परशव्येनोऽग्रं देवं वनिष्ठुना वसिष्ठः शृङ्गेनिकोश्चाभ्याम् उग्रलोकेतेन मित्रज्ञसौव्रत्येन रुद्रं दौर्व्रत्येनेन्द्रं प्रक्रीलेन मरुतोबलेन साध्यान् प्रमुदा भवस्य कण्ठ्यग्रुद्रस्याहन्तः पार्श्वं महादेवस्य यकृच्छर्वस्य वनिष्ठः पशुपतेः पुरेतत् लोमभ्यः स्वाहा लोमभ्यः स्वाहा त्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा लोहिताय स्वाहा मेधसे स्वाहा मेधसे स्वाहा मागसेभ्यः स्वाहा मागसेभ्यः स्वाहा स्नावभ्यः स्वाहा स्नावभ्यः स्वाहा स्थभ्यः स्वाहा स्थभ्यः स्वाहा मज्जभ्यः स्वाहा मज्जभ्यः स्वाहा वेतसे स्वाहा पायवे स्वाहा आयासाय स्वाहा अप्रायासाय स्वाहा संयासाय स्वाहा वियासाय स्वाहोऽध्यासाय स्वाहा शुचे स्वाहा शोचते स्वाहा शोकाय स्वाहा तपसे स्वाहा तप्यमानाय स्वाहा तप्ताय स्वाहा निष्कृत्ये स्वाहा प्रायश्चित्ते स्वाहा भेषजाय स्वाहा यमाय स्वाहान्तकाय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ब्रह्महत्याये स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा द्यावा पृथिवेभ्यः स्वाहा ईशावास्यमिदग्न सर्वं यत्किञ्च जगत्याञ्जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जे धामाग्रधक्तस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजे विषेच्छतज्ञ समाः एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृताः ताग्नस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एकचात् महनो जनाः अनेजते कं मनसो जवे योनैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन् अपोमा करिष्वा दधाते तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तत्पन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तो सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेव नुपश्यते सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः एकत्वमनुपश्यतः
सपर्यगाच्छुक्रमागायमोरणमस्ना विरग्शुद्धमपापविद्धम् कविर्मणिषे परिभो स्वयंभोर्याधातध्यतोऽर्थान्यदध शाश्वतेभ्यः समाभ्यः अन्धं तमः प्रवेशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यो विद्यायाग्रताः अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधिरानायनस्तद्वेदचक्षिरे विद्याञ्च यस्तद्वेदो भयज्ञसः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते अन्धं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यवसम्भूत्याग्रताः अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधिरानायनस्तद्वेदचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयज्ञसः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापेहितं मुखम् तत्त्वं भूषन्नपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये पोषन्नकर्षयमसौर्यप्राजापत्यव्योः रश्मीन् समोहतेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं दत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि वायुरनिलममृतमथेदं भस्मां तज्ञ शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतज्ञ स्मर क्रतो स्मर कृतज्ञ स्मर अग्ननय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जोहोरानमेनो भूयिष्ठान्ते नमा उक्तिं विधेम ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ஓம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவியே நமஹ. தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ மாங்கல்ய பூஜையை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த தாயாரானவள் 7 மன்வந்திரங்களிலே எப்படி அவதரித்தாள் என்று ஒவ்வொரு மன்வந்திரத்தையும் செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். ரைவத மன்வந்தரம். இந்த மன்வந்திரத்திலே வில்வ மரத்திலிருந்து தேவி தோன்றியிருக்கிறாள். பசுமையும் கம்பீரமும் இணைந்தது வில்வ மரம்.
இந்த பண்புகளின் வடிவாய் தேவி தோன்றியதால் அந்த வில்வ மரத்தின் அடியில் உலக நன்மைக்காக தவம் இயற்றிய தபஸ்வினி இவள். இதன் பலனாலேயே சாதாரண காட்டு மரமாகிய வில்வ மரம் வனஸ்பதி என்னும் காட்டரசமாயிற்று. அதையே ஸ்ரீ சூக்தம் சூரிய வர்ணமுடையவளே, நினது தவத்தாலேயே வில்வத் தருவார் வனஸ்பதியாயிற்று. அந்த ஞானப்பழமானது உள்ளே உள்ள அஞ்ஞானத்தையும் வெளியே உள்ள அமங்கலத்தையும் அழிக்கட்டும் என்று போற்றுகிறது. அடுத்ததாக ஷாக்சசு மன்வந்தரம். இந்த மன்வந்தரத்தில் செந்தாமரையில் அவதரிக்கிறாள் மகாலட்சுமி. அதே செந்தாமரையில் அமர்ந்தாள் யோகிகளின் உடலில் மூலாதாரம் முதல் சஹசிராராம் வரை ஈரான யோகானுபவ ஸ்தானங்கள் கமலங்களாக இருப்பது இவள் மகா யோகேஸ்வரி என்பதை காட்டுகிறது. பரமேஸ்வரியான பராசக்தி திருமகளின் தொடர்புடன் திருவாரூர் என்னும் தலத்திலே கமலாம்பிகையாகவே தவ யோகினியாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பத்மத்திலிருந்து உதித்தவள் இவள், பத்மத்தில் அமர்ந்தவள். பத்மாலயை பத்மினி என்னும் பெயரை தாங்குபவள், பத்மம் போன்ற கண்களை உடையவள். ஸ்ரீ சூக்தம் இதையே பத்மப்ரியே பத்மினி பத்மஹஸ்தே பத்மாலயே பத்மதளாய தாக்ஷி என்று சேவிக்கிறோம். அப்படி கூறுகிறது அந்த சூக்தமானது. அடுத்ததாக வைவஸ்வத மன்வந்தரம். இந்த வைவஸ்வத மன்வந்தரத்திலே நடைபெற்று கொண்டிருப்பது தற்போது அந்த மன்வந்தரம்தான். தேவா அசுரர் பார்க்கடலை கடையும் பொழுது பார்க்கடலில் இருந்து இந்த மன்வந்தரத்திலே மகாலட்சுமி தோன்றினாள். ஐராவதம் உச்சேஸ்வரம் என்னும் குதிரை பின்தொடர ரதத்திலே ஆரோகணித்து பார்க்கடல் புத்திரியாக தேவி உதித்த ஸ்ரீசூக்தத்தின் 3வது ரிக்கான அஸ்வபூர்வஜாம் ரதமத்யாம் என்று துதி விளக்குகிறது. கர்தமன பிரஜாபதி என்னும் முனிவருக்கு மகளானாள். கர்தமரை வேண்டி உனக்கு லக்ஷ்மி மகளானாள். ஸ்ரீ சூக்தத்திலே அவள் தன்னுடைய குலத்திலே வாசம் செய்ய நீர் எனக்கு அருள வேண்டும் என்று துதிக்கிறது. இப்படியாக தசரா அதாவது நவராத்திரியின் பொழுது இந்த சப்த லக்ஷ்மிகளையும் நினைத்து தியானம் செய்தால் நமக்கு அனைத்து விதமான நலன்களும் கிடைக்கும் என்று இவ்வாறாக 7 மன்வந்திரங்களிலே அந்த தாயாரானவள் எழுந்தருளி பக்தர்களை அருள்பாலித்து கொண்டிருக்கும் அந்த திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயாருக்கு இதோ மாங்கல்ய பூஜை நடைபெற்று
अतीमा नोषा वायिनां सुषुवांसाम् ओ वै राया स्यारातां सोदाः ओहो वा पीभा काधुप्राचेतसे माहै वाचो देवाव वचो देवा यासस्यातायि ताधा धिया स्यावो धानो हाये उक्थं जानो हाये सस्यमानं नागोराये आचिकेता नागायात्रां ये यमानाः ओहो वाः ओहो वाः इन्द्रवक्ताये भिर्मान्दायिष्टो वाजानाञ्च वाजापतिः हरायेवांसो तानांसा खा ओ ओ ये डा आयाहि ओम विचक्रमे त्रेदानि तदे पदं समूढमस्य भागं सुरे तमाञ्ज्योति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अदोह्यं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा
नाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।